السلام علیکم۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن دينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ معزز حاضرین، سامعین و سامعات، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے، سمجھیے یہ آخری آیت ہے سورہ بقرہ میں جو ابراہیم ہم نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 پڑھ کر سنائی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ تو جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم ہی ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے۔ فرمایا 4 پرند لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمتوں والا ہے۔ معزز حاضرین، اس آیت کی ہلکی سی تشریح ہم نے تقریباً 2 دن پہلے آپ کے سامنے بتائی تھی کہ نمرود کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کراتے ہوئے ابراہیم نے کہا تھا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، لہذا اس نے کہا تھا کہ نے جب دیکھا کہ میرا رب زندہ کرتا بھی ہے مارتا بھی ہے، تو لہٰذا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا رب زندہ کرتا ہے کیسے مارتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے میرے پروردگار، تو مجھے بتا کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے بعد الموت پر؟ تو کہا نہیں، اصل میں میرے دل میں اطمینان اور سکون اور تسکین کے لیے میں پوچھتا ہوں۔ لہٰذا ہم نے کئی جو ہے آپ کے سامنے جو ہے بتائے تھے کہ معنی مفسرین جو بتائے ہیں وہ یہ ہے، ابراہیم کو شک نہیں تھا بلکہ ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا تھا۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حسن اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے یقین کو اور یقین میں اور اضافہ کرنے کے لیے سوال پوچھا تھا۔ بہرحال ہم اس دن جہاں رکے تھے وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو ہے بعد الموت پر میری قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو کیا کرو، پرندوں کو لو۔ کتنے پرندوں کو نا؟ 4 پرندوں کو لینا۔ وہ پرندے کون تھے؟ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اس کی تعین نہیں کی تو لہٰذا اس بارے میں وقت لگانا، اس کے پیچھے پڑنا، یہ جو ہے لا یعنی چیز ہے، لہٰذا اس کے جو ہے پیچھے اس کی تعین کے پیچھے اگر پڑیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، فخذ 4 من الطیر، 4 پرندوں کو لو، فصرہن الیک، تو کیا کرو، پرندوں کو لو اور جو ہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ فصرہن الیک کا کیا معنی ہے؟ مفسرین نے کئی معنی کیے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس میں مائل کرنے کا معنی ہے، بعض نے کہا کہ جوڑو، بعض نے کہا ملا کر رکھو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ سرہن مطلب یہ ہے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ ابن عباس کا اور ایک قول ہے اس میں باندھنے کا معنی آتا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندوں کو لو، کیا کرو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ کر آؤ، پھر انہیں پکارو، تو کیا ہوگا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ جان رکھو اللہ تعالیٰ غالب والا حکمت والا ہے۔ معزز حاضرین، اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے سر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا، دھڑ پورا وہاں تھا، تو لہٰذا جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، چلتے ہوئے نہیں دوڑتے ہوئے آئے۔ ابراہیم نے جو ہے جس کا سر تھا دھڑ تھا بدلنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید پرندوں کو الہام کیا، چنانچہ ہر پرندہ برابر اپنے سر سے لگ گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے ما فی القرآن ارجع آیت عندی، کہتے تھے کہ قرآن میں اس سے زیادہ پر امید آیت کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورتوں میں جو ہے بعد الموت قیامت کو ثابت کیا، لیکن مدنی دور کی جو آیت ہے اس میں زیادہ اور کیا۔
चुनांचे अहले इल्म कहते हैं कि बास बादल मौत यानी क़यामत को साबित करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में 5 मिसालें दी। कितनी? 5 मिसालें दी हैं। उन मिसालों में एक मिसाल ये भी है जो अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दी थी। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इब्न उसैमिन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जैसे ही इब्राहीम ने पुकारा तो वो क्या हुए? दौड़ते हुए आ गए। यहाँ सायन का माना क्या है? तो इब्न उसैमिन कहते हैं कि यहाँ उड़ने का माना है या तेजी से चलने का माना है। लिहाजा मालूम होता है कि उड़ने का माना ज्यादा राजे है। क्यों? इसलिए कि परिंदे उड़ते हैं, चलते कम हैं, लिहाजा उड़ना ज्यादा अबलग है। तो जब पढ़कर उड़कर आए और जो है उनके धड़ लगे और पूरे परिंदों की शक्ल मुकम्मल तौर पर सही कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। इब्राहीम को कमाल कुदरत का इल्म हुआ, फौरन कहने लगे इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह तबारक व तआला जो है गलबे वाला, हिकमत वाला है। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अजीज है ना, गालिब है ना, यानी गालिब का तर्जुमा करते हैं ना उसका, अल्लाह ताला गालिब है। तो अल्लाह ताला की जो इज्जत है, अल्लाह ताला की जो अजीज होने का माना, उसकी 3 सूरतें हैं। ये एक तो है इज्जतुल कदर, यानी अल्लाह तबारक व तआला ऊंचा है। दूसरा है इज्जतुल क़हर, अल्लाह ताला जो है ऊंचा भी है, साथ में जो है गालिब भी, जैसे कहा वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिह, और फरमाया वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किब लिहुक्मिही व हुवा सरीउल हिसाब। अल्लाह ताला जब फैसला करता है तो उसके पीछे फैसला करने का जो है कोई गालिब नहीं आता। और उसी तरीके से इसी अजीज के अंदर कवी होने का माना भी है। लिहाजा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने अकीदे से मुताल्लिक़ तकरीबन नूनिया, वो जिस शेर के आखिर में नून आता है उसे कहते हैं नूनिया, तो उस अनशार में जो है इसकी तरफ मुकम्मल तौर पर जो है इशारा किया है। इन आयतों से हमें क्या बात मालूम होती है? पहली बात ये मालूम होती है तो अल्लाह तबारक व तआला क्या फ़र्क करते हैं, मिसालों के ज़रिए जो है अक़ीदे तौहीद को भी समझाते हैं, बास बादल मौत को भी समझाते हैं। इन आयतों को पढ़ने से हमें जो फ़वाइद मालूम होते हैं वो बहुत बड़े-बड़े अज़ीम फ़वाइद हैं। एक सबसे पहला फ़ायदा क्या है? ये है बंदे को दुआ करते हुए क्या करना चाहिए? तौहीद रुबूबियत का वसीला लेना चाहिए। आज हम देखते हैं लोग नबी का वसीला और उसका वसीला, फलां वसीला। याद रखिए वसीले की 2 किस्में होती हैं। एक है वसीले मशरूअ, यानी ऐसा वसीला जिसको शरीयत ने जायज़ करार दिया। कैसे? अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा का, सिफ़ात का वसीला, और उसी तरीके से आदमी के नेक अमल का वसीला। तो ये जो है वसीला और उसकी कई शक्लें हैं, अक़ीदा क्लास में इंशाअल्लाह बताएँगे। तो यहाँ क्या हुआ, हज़रत इब्राहीम ने रब कहा, अल्लाहुम्मा नहीं कहा। मतलब क्या है? जब दुआ में बंदा रब कहता है तो क्या फरमाते हैं उलमा के इससे पहले भी गुज़र चुका है ये नुक्ता कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जितनी दुआ हैं रब से शुरू होती हैं। मतलब ये है कि दुआओं को अल्लाह तबारक ताला जब बंदों की ज़रूरतों को पूरा करता है तो इसका जो है ताल्लुक तौहीद रुबूबियत से है। तो मतलब ये समझ में आया, तौहीद रुबूबियत के ख़ुसूसियात में से ख़ुसूसियत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदों की ज़रूरत को पूरा फरमाता है। इसी तरीके से सही मुस्लिम की वो हदीस आपको मालूम होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी निकलता है, लंबा सफ़र करता है, उसके बाल अटे हुए हैं, कहता है रब रब, हम भी देखिए रब रब है, अपने हाथ को फैलाता है जैसे कुछ लोग दुआ करते हो फैलाते हैं, अपने हाथों को फैला लेता है, कहता है कि रब रब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका खाना भी पीना, उसका खाना भी हराम का, पीना भी हराम का, पूरा जिस्म बना हराम से, तो फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो कहाँ से दुआ कबूल होगी? मालूम ये हुआ कि उस हदीस में भी रब रब का ज़िक्र है, चूँकि अल्लाह ताला से पुकारा, लेकिन चूँकि दुआ कबूल होने के रास्ते में कुछ रुकावटें बनती है ना इंसान की तरफ से, तो उसमें रुकावटें मुकम्मल तौर पर बताई गई हैं। अल्लामा इब्न उसैमिन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, वलौ तअम्मलत अक्सर अदइयतल अदइयतिल कुरआनी वजदतहा वजदतहा मुसद्दरतन बिर्रब। कहते हैं कि अगर तुम जो है अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जितनी दुआएं हैं उन दुआओं को अगर तुम देखोगे तो मालूम होगा कि इनमें से अक्सर दुआएं क्या हुई हैं? रब्बना से शुरू हुई हैं। हत्ता कि ईसा की दुआ भी अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा। देखिए अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुआ ज़्यादा पढ़ते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इस आयत को पढ़ने से दूसरा फ़ायदा इब्न उसैमिन ने ये ज़िक्र किया है कि बंदा कभी अपने यकीन में ज़्यादती के बारे में अल्लाह तबारक व तआला से सवाल कर सकता है। बड़ी बारीक चीज़ है, दोबारा हम दोहरा देते हैं। यकीन में ज़्यादती के बारे में अल्लाह तबारक व तआला से बंदा सवाल कर सकता है। जैसा कि इब्राहीम बास बादल मौत पर ईमान रखते थे, फिर भी कहते थे, ए रब, मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे तू मुर्दों को ज़िंदा करता है।
इस आयत को पढ़ने से तीसरा फायदा हमें ये मालूम होता है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम शक नहीं करते थे, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई जगह कुरान में फरमाया, अलिफ लाम मीम तंजीलुल किताबी ला रैब फीहि मिन रब्बिल आलमीन। कभी फरमाया फला तकुम मिनल मुमतरीन, शक करने वालों में से मत हो जाओ। नबी कभी शक नहीं करता। उलमा कहते हैं कि शक की तरफ ले जाने वाले असबाब से भी मुकम्मल तौर पर नबी को मुकम्मल तौर पर जो है बचने की तंबीह की गई। और ये बात याद रखिए आप, शक की जिद यकीन है। लिहाजा आप देखते हैं कि इस्लामी अकीदे के बुनियाद किस पर है? यकीन पर है। इस्लामी अकीदे की जो खुसूसियत उलमा ज़िक्र करते हैं उसमें एक यकीन भी है। लिहाजा आप देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला जो है अकीदे तौहीद के अलावा जितने माबूदान बातिला का अकीदा ज़िक्र करता है वहाँ कहता है इनहुम इल्ला यज़ुन्नुन ज़न। मतलब ये हुआ इस्लामी अकीदे की बुनियाद किस पर है? यकीन पर है। और माबूदान बातिला के जितने अकायद बातिला है उन तमाम की बुनियाद किस पर है? ज़न पर है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कभी कहता है इनहुम इल्ला यज़ुन्नुन, कभी इनहुम इल्ला यफ्रुसून कहता है। बहुत हाज़रीन, चौथा फ़ायदा इस आयत को पढ़ने से ये बात भी मालूम होती है कि ऐनुल यकीन मुकम्मल है खबरे यकीन से। क्या मतलब है? एक आदमी यकीन से आपको खबर दे रहा है, आप उसको क्या नहीं मानते, लेकिन जब वो अपनी आंखों से उसको देख लेते तो आपको यकीन आ जाता है। इसको कहते हैं आइनुल यकीन, ज्यादा कामिल है खबर यकीन से। मसल के तौर पर समझिए, अब जिलहिज्जा में जानवरों की खरीदारी का मसला है। एक आदमी कहता है कि फलां जगह गाय बड़ी जबरदस्त है, आप सुनते तो हैं लेकिन जब तक नहीं जाके देख लेते आपको इत्मीनान नहीं होता। तो क्या हुआ, जिसने गाय के बारे में खबर दिया वो कब्र यकीन है, लेकिन आपने जाकर खुद देखा तो उसे ऐन यकीन कहेंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसल खब्रु कल मुआयना, जो बात जो बताई जाती है देखने की तरह नहीं होती, तो देखना जो होता है उससे जो है मुकम्मल तौर पर जो है ऐनुल यकीन हासिल होता है। इसीलिए आप देखेंगे हज एक ऐसा बड़ा दकीक बाब है हज का। जिन उलमा ने हज नहीं किया उन्होंने ये कहा कि सई जो है सफ़ा से शुरू होती है और एक चक्कर सिर्फ सफ़ा पे ही ख़त्म होता है। अल्लामा इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह वगैरह जो है इन्होंने हज नहीं किया था, अल्लामा नववी वगैरह इन्होंने हज नहीं किया। ये लोग कहते हैं कि सई के जो चक्कर हैं वो जो है तो मुकम्मल तौर पर 14 है, हमारे पास हालांकि 7 हैं। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैसल खब्रु कल मुआयना, खबर देना अलग है, जाकर देखना अलग है। अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि यकीन के 3 दर्जात होते हैं। ज़रा गौर से सुनिए, ये यकीन के 3 दर्जात होते हैं। पहला है इल्म, दूसरा है यकीन, पहला है इल्मुल यकीन, दूसरा है ऐनुल यकीन, तीसरा है हक़्क़ुल यकीन। ज़रा गौर से फिर यकीन के 3 दर्जात होते हैं। पहला है इल्मुल यकीन, अल्लाह फरमाता है सूरह तकासुर में अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला कल्ला लौ तअलमून इल्मुल यकीन। यह इल्मुल यकीन का मतलब क्या है? इल्मुल यकीन पहला। दूसरा कहा लतरा, उसके बाद कहा अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला कल्ला तअलमून लतरउन्नल जहीम सुम्मा लतरउन्नहा ऐनुल यकीन। यानी अपनी यकीन की आँख से तुम क्या करोगे? देखोगे जहन्नम को। ये दूसरा है। हक़्क़ुल यकीन का जो दर्जा है अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह वाक़िया की आयत नंबर 95 में उसको बयान किया है। अल्लाह फरमाता है इन्न हाज़ा लहु हक़्क़ुल यकीन। अच्छा ठीक है, आम आदमी यकीन के इस दर्जात को कैसे समझ सकता है? ज़रा मिसाल के ज़रिए हम आपको समझाते हैं। इब्न उसैमिन रहमतुल्लाह ने बड़ी अच्छी मिसाल दी। क्या कहा? एक आदमी कहता है कि मेरे पास मीठा सेब है। ज़रा गौर से सुनिए मिसाल को, यकीन के दर्जात क्या होते हैं। मेरे पास मीठा सेब है, किसी ने कहा, ये क्या है? इल्मुल यकीन है। आपको यकीन हो गया कि वो इल्म, आपका यकीन जो है इल्मुल यकीन आपको हो गया कि उसके पास मीठा सेब है। उसने दिखाया मेरे पास मीठा सेब है, इसको कहेंगे ऐनुल यकीन। आपने यकीन की आँख से उसको देखा। पहली मर्तबा उसने कहा कि मेरे पास मीठा सेब है, ये क्या है? इल्मुल यकीन है। ऐनुल यकीन क्या? आपने यकीन की आँख से देखा, उसने दिखाया देखो मेरे पास मीठा सेब है, ये क्या हो गया? ऐनुल यकीन हुआ। हक़्क़ुल यकीन क्या? आपने उसको खाकर देखा, चलो मज़ेदार था, तो मालूम ये हुआ कि ये 3 दर्जात हैं। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इस आयत को, इस सूरत को पढ़ने से ये बात ये मालूम होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा क़ाल अवलम तुअमिन, कि अल्लाह ने फरमाया क्या तुम जो है मेरे मेरे ऊपर ईमान नहीं रखते? क्या तुम्हें जो है ईमान नहीं है? तो इब्न उसैमिन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इब्राहीम से बात कर रहा है। अल्लाह ताला के लिए सिफ़त कलाम साबित हो रही है। और अहले इल्म का कहना है कि अल्लाह ताला के लिए सिफ़त कलाम अज़ली और अबदी तौर पर मुकम्मल तौर पर साबित है। क्या कहा?
यतकल्लमु बिमा शाअ मता शाअ कैफ शाअ बिमा शाअ मिनल क़ौली मता शाअ फी ज़मन। अल्लाह ताला जिससे चाहता है, जब चाहता है और जैसे अंदाज में चाहता है मुकम्मल और बात करता है। और अल्लाह तबारक व तआला की जो बात होती है, आवाज़ भी आती है, उसको सुना भी जा सकता है, उसके हरूफ भी हैं। देखिए कितनी बारीक है माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जब बात करता है तो उसकी आवाज़ भी आती है, सुनी जाती है, उसके हरूफ भी होते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ सुनी ना, अल्लाह ने पूछा, क्या इब्राहिम क्या तुम ईमान नहीं रखते? अल्लाह ने इब्राहिम ने कहा अवलम तुमिन। मालूम यह हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला बात करते रहता है। जाके अल्लाह तबारक व तआला के बारे में कई जगह है वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। और ये बात भी याद है अल्लाह ताला से हम कलामी का शरफ 3 नबियों को हासिल हुआ है। कौन-कौन? एक तो है हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दूसरे हैं मूसा अलैहिस्सलाम, तीसरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया आदम नबियुन मुकल्लिम। मूसा से बात करने की दलील वहाँ है वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने की दलील मेराज की हदीस है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा क्या तुम ईमान नहीं रखते? तो हज़रत इब्राहिम ने जवाब दिया असल में जो है मैं अपने दिल में जो है सुकून पैदा करना चाहता हूँ, मेरे दिल की तस्कीन हो जाए। अल्लामा इब्न उसैमिन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि क्या होता है लियत्मइन्न क़ल्बी, क्या दिक्कत है इनकी, लियत्मइन्न क़ल्बी कहकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ऐ परवरदिगार मैं तो ईमान रखता हूँ बास बादल मौत पर, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख लूंगा ना ऐनुल यकीन से, तो क्या हो जाएगा, मेरी यकीन में इजाफा होगा। कहते हैं कि हजरत इब्राहिम ने जब देखा तो ईमान में इजाफा हुआ। तो इब्नुल क़य्यिम इब्न उसैमिन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ईमान बढ़ता भी है, घटता भी है। फीहि रद्दुन अला क़ौली मन यक़ूलु अन्नल ईमान ला यज़ीदु वला यनक़ुस। कहते हैं जो आदमी ये कहता है कि ईमान घटता भी नहीं बढ़ता भी नहीं, इस आयत में उस पर रद्द है। बल्कि कुरान की आयतें और हदीसें वगैरह बताती हैं कि ईमान घटता भी है, बढ़ता भी है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फतह में कहा लियज़दादु ईमानम मअ ईमानिहिम। कभी सूरह तौबा की आयत नंबर 124 में कहा कि फज़ादतहुम ईमाना वहुम यस्तबशिरून। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बहुत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी मुनकरात को देखता है तो अगर मुनकर को देखकर खुद भी अपने दिल में बुरा ना समझे तो ईमान कमजोर हो जाता है। वो हदीस है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की। तो मालूम यह हुआ कि मुनकरात को देखकर अगर बुरा समझे मतलब ये हुआ कि दिल में ईमान है। और उसी तरीके से इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस है जिसमें आपने फरमाया बंदा जब चोरी करता है, शराब पीता है, ज़िना करता है तो ईमान चले जाता है। फिर इक्रिमा के सामने इब्न अब्बास ने कहा कि फ़इन ताब रजअ इलैहिल ईमान फशब्बका बैन असाबिही, कि तौबा कर तो ईमान वापस आ जाता है। इससे खुद मालूम हुआ कि जब बंदा ज़िना करता है, चोरी करता है, शराब पीता है तो कमाल ईमान की नफ़ी हो जाती है। और उसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में कहा मा राइतु मिन नाक़िसाति अक़लिन व दीन। आपने कहा कि दीन और अक़ल के एतबार से औरतों में नक्स बहुत होता है। ये आप देखना चाहते हैं कि ईमान कैसे घटता है, बढ़ता है, तो इस ताल्लुक से अब्दुर्रहमान नासिर अस्सादी इब्न उसैमिन जो उस्ताद है उन्होंने जो है उसके ऊपर जो है किताब लिखी है अल उमूर अल्लती युस्तमद्दु मिनहुल ईमान। तो वो किताब का मुताला भी है, वो बहस का मुताला भी कर सकते हैं। तो इब्न उसैमिन इन तमाम का कहते हैं यजीदुल ईमानु बिहस्बि इक़रारिल क़ल्ब। दिल में ईमान का इक़रार जितना होगा उसी एतबार से ईमान बढ़ेगा भी घटेगा भी। तो मालूम यह हुआ कि ईमान घटता भी है, बढ़ता भी है, यह अहलुस सुन्नह वल जमाअह का कौल है। और उसी तरीके से इस सूरत को, इस आयत को पढ़ने से ये बात मालूम होती है कि कभी-कभी शैतान क्या करता है, यहाँ तो हज़रत इब्राहिम शक नहीं किए, लेकिन उससे हटकर एक बात बताते हैं कि अकीदे के बारे में शक बहुत है आज लोगों में। तो अगर कोई आदमी, अगर शैतान आकर किसी बंदे मोमिन को शक में डालता है तो क्या करना चाहिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलयस्तइज़ बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगे। बाज़ रिवायतों में आया कि सूरह फलक और नाज़ पढ़ना चाहिए। बाज़ रिवायतों में ये भी आया, ये कहे बंदा कुल आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया। जैसा कि हदीस में आया शैतान बंदे के पास आता है, कहता है तुमको पैदा करने वाला अल्लाह है, अल्लाह कौन पैदा किया? तो ऐसा सवाल आया तो फौरन मुकम्मल तौर पर जो है अल्लाह तबारक व तआला से पनाह लेना चाहिए। और उसी तरीके से कभी अकीदे में वसवसा आता है, कभी अकीदे में शक आता है, तो इस वक़्त में क्या करना चाहिए? अल्लामा सालेह फज़ल हफ़िज़हुल्लाह कहते हैं कि तदब्बुर कुरान का मुकम्मल और मुताला करना चाहिए। तो बहरहाल आप देखेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह की जो 7 शर्तें अहले इल्म ज़िक्र करते हैं, उसमें से एक ये भी है
کہ بندہ جو ہے الیقین المنافی للشک، بندے کے اندر یقین ہونا چاہیے جو شک کے منافی ہو۔ اگر بندہ شک کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے عقیدے میں گڑبڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، بغیر شک کے جو پڑھے گا وہی جنت میں داخل ہوگا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یقین اعمال قلبیہ کی روح ہے۔ جب بندے کے دل میں، دیکھیے ماشاءاللہ، جب بندے کے دل میں یقین داخل ہو جاتا ہے تو اس دل کو نور سے، روشنی سے بھر دیتا ہے، اور اس دل میں جو بھی شک، ناراضگی جو بھی ہوتی ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال آج کے درس کا مختصر خلاصہ یہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمروز کا سامنا کیا تو حضرت ابراہیم نے اپنے جو ہے نمروز کے سامنے تعارف کرایا تھا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، اس نے کہا انا احیی و امیت، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میرا رب زندہ کرتا بھی ہے مارتا بھی ہے، لہذا بعض الموت پر جو ہے ایمان رکھتے ہوئے یقین کے لیے، اپنے یقین میں اضافے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا، تو اللہ تبارک نے ابراہیم کو حکم دیا کہ جاؤ پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، پہاڑ پر رکھو اور ان کو پکارو دور سے، جیسے یہ پکاریں گے وہ واپس آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ اسی طریقے سے ہم کیا کریں گے، بعض الموت ثابت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الروم میں کہتا ہے جب تم کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے تم کو پیدا کیا نا، تو تم کو قبروں سے نکالنا بہت آسان ہے، وہ اہون علیہ۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بعض الموت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں 3 جگہ اپنی ذات کی قسم کھائی، ماشاءاللہ اپنے ذات کی قسم کھائی۔ سورہ یونس میں کہا قل ان ربی انہ لحق، سورہ سبا میں بھی وہی کہا، اور جو ہے سورہ تغابن میں کہا۔ تو اس طریقے سے سورہ یونس میں، سورہ سبا میں، سورہ تغابن میں 3 جگہ جو ہے اپنے ذات کی قسم کھا کر اللہ نے جو ہے مکمل طور پر قیامت کو ثابت کیا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم جو ہے بعض الموت پر ایمان رکھتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی اسلامی عقیدے کی جو خصوصیت یقین ہے، اس یقین کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان غیر متزلزل ہے، اور آج لوگ عقیدے کے بارے میں بڑے شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ بعض لوگ عذاب قبر کا انکار کر رہے ہیں، بعض لوگ صراط کا انکار کر رہے ہیں، بعض لوگ پتہ نہیں جو ہے جو اسلام کی جو ہے مبادیات ہے، مضبوط عقیدہ ہے اسلام کا، اس کا بھی مکمل طور پر جو ہے انکار کر رہے ہیں۔ ہمیں ابراہیم جیسا غیر متزلزل عقیدہ ہمیں اپنا پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں سورہ آل عمران میں ابراہیم کا جہاں جہاں ذکر ہے وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ابراہیم جیسا مضبوط عقیدہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مضبوط توحید اور غیر متزلزل ایمان اللہ تعالی ہم سب میں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بعد الموت کو پر ایمان لانے اور اسلامی عقیدے کی خوبی جو یقین ہے اس کو اپنے اندر پیدا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔